दिन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। We love you, Lord. Lord, we thank you for your loving kindness, Father. We submit to you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. We worship you. Thank you for this time you have given to us, Lord. We stand in reverence of you, Father. Jesus, your loving kindness, I'm so blessed by all that you've done, this life that you give. Jesus, your loving kindness, this life that's changing my heart, drawing me near to you. Your love is better than life. I know it well, and I'll find all that I need in you. Your love is better than life. I know it well, and I'll find all that I need in you. Oh, Jesus, your loving kindness, I'm so blessed by all that you've done, this life that you give. Jesus, your loving kindness, this life that's changing my heart, drawing me near to you. Your love is better than life.
We find all that we need in you. Thank you, Lord. We find all that we need in you, Lord. हमें जो कुछ भी जरूरत है हमें वो तुझ में मिल जाता है खुदा. तू यहोवा ईरे है खुदा. Lord, you are Jehovah Jireh, our provider. तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा. तेरा प्रेम हमारे जीवन से बढ़कर है खुदा. We love you, Lord. In Jesus' name I pray. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन. God is good. परमेश्वर अच्छा है We have the estimation that our Lord is coming soon. और हमारे हिसाब से हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है. And He will strengthen us. वो हमें सामर्थ देगा. He will make us powerful. वो हमें सामर्थशाली करेगा. He will make us forceful. और वो हमें बलवंत बनाएगा. Signs and wonders in heavens will take place. और चिन्ह चमत्कार होंगे स्वर्ग में. And we know as in USA, और हम जानते हैं जैसे यूएसए में it is reported that more than 20 food process plants, warehouses has been destroyed by fire. 20 फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स वेयर हाउसेस थे उनको नाश किया गया है By plane crashes. प्लेन क्रैशेस के अनुसार. And this will cause a food shortage और उससे खाने की कमी होगी in future. आने वाले समय में. Wait on God, God will supply you. तो प्रभु पर रुकिए, वो हमें देगा. God will supply us. परमेश्वर हमें देगा. God will not leave you. परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं. Even I think yesterday's I heard news और कल का न्यूज़ मैंने देखा that farmers are facing lot of problems. कि जो किसान लोग हैं उन्हें बहुत सारी तकलीफें Again, उठानी that पड़ती will है. come on us as a food problem. और फिर से ऐसा होगा कि हमारे ऊपर खाने की कमी का समस्या का सामना करना पड़ेगा. And Sri Lanka is facing the problem. और श्रीलंका उसी समस्या का सामना कर रही है. This end time will be the time of deception. ये जो अंत समय का समय होगा वो फसावट का समय होगा. That everyone should have a biometric ID, कि हर एक के पास बायोमेट्रिक आईडी, a unique ID एक खास आईडी होनी in चाहिए these last days, इस अंतिम दिनों में. according to Revelation 13. प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के अनुसार. And globally, और दुनिया भर में we can see the cryptocurrency or digital currency is coming. क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी आ रही है. Church, कलिसिया by 2023, 7 years tribulation or great tribulation period will begin, and the church really are sleeping. 2023 से क्लेश का समय चालू होगा 7 साल का. और कलिसिया जो है सच में सो रही है And they are denying the season. और इस मौसम का इनकार कर रही है. They are saying nothing happens. और वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा. Everything is same. सब कुछ नॉर्मल है, सेम Everything है, is okay. सब कुछ ठीक है. Near Mississippi, a fireball fell from heaven. मिसिसिपी में से एक आग का गोला आसमान से नीचे गिरा. This has come in a news, और ये न्यूज़ में समाचार में आया. and they are calling it a fireball. उससे वो आग का गोला कहते हैं. So when we read from Revelation 8, जब हम प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय में से पढ़ते हैं, then we can see that when the Lamb opened the 7th seal, जब मेमने ने 7वां मोहर खोला there was a silence in heaven about a half an hour. और आधे घंटे के लिए पूरे स्वर्ग में शांति छाई हुई थी. You please open Revelation 8 and 1 to 13. You can read. आप प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय खोल सकते हैं और 1 से 13 तक पढ़ सकते हैं. And when the Lamb opened the 7th seal, जब
मेमने ने सातवीं मुहर खोली There was a silence in the heaven for half an hour. तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। That half an hour is a symbol. आधा घंटे है कुछ चिन्ह है। Period for an hour means a period of time. हमने पढ़ा है 1 घंटा यानी कुछ समय Half a time means half of that period. और आधा समय यानी उस समय का आधा। And I saw the seventh angel who stand before God. और मैंने देखा कि सातवां जो स्वर्गदूत है परमेश्वर के सामने खड़ा था And they were given 7 trumpets. और उन्हें 7 तुरैयां दी गई। And another angel और दूसरा who स्वर्गदूत had a golden censer जिसके पास सोने का धूपदान था come and stood at the altar, वो वेदी के निकट आया और खड़ा हुआ। and he was given a much incense to offer, उसको बहुत धूप दिया गया along with the prayers of all saints on the golden altar before the throne of God. कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। God is taking all prayers when we pray. जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हर प्रार्थना को लेता है। This prayer is different. ये प्रार्थना अलग है। This prayer is not about your healing. ये प्रार्थना आपके चंगाई के लिए This नहीं prayer है। is not something of your own mean motive prayers, ये प्रार्थना आपके खुद की चीजों के लिए नहीं but है, this prayer is prayed according to the will of God. पर ये प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार की गई So थी। that all prayers the angel took सारी प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत ने उठाया and offered unto God. और परमेश्वर के वेदी पर चढ़ाया। Yes, we need to know that whenever you pray, the angel carries your prayers. ये जान लीजिए कि जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत आपकी प्रार्थना को लेता है। You need to have a surety for you. और आपको खुद के लिए पक्का होना चाहिए। For इस your बात की। prayers are so secured and it is carried to the throne room of God. और आपकी प्रार्थनाएं इतनी सुरक्षित है कि आप वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के वेदी तक पहुंचाई जाती है। Angels carry your prayers. और स्वर्गदूत वो प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं। As Daniel prayed, जैसे दानियल ने प्रार्थना and he की prayed, और उसने प्रार्थना and the की very first day, और पहले ही दिन the prayer was answered. प्रार्थना का उत्तर मिला। That means his prayers were carried so swift before the throne room of God. इसका मतलब है कि दानियल की प्रार्थना इतना तेजी से परमेश्वर के वेदी तक पहुंचाई गई। The angels carried that prayer to the throne room of God, स्वर्गदूतों ने उस प्रार्थना को परमेश्वर के वेदी तक पहुंचाया and immediately God answered. और तुरंत परमेश्वर ने उत्तर दिया। It reached to him after 21 days. That is different story. और वो 21 दिन के बाद उसके पास उसका उत्तर मिला। ये दूसरा कहानी है। But you need to believe that whenever you pray according to the God's will, your prayers will be carried by the angels to his presence. तो आप ये जान लीजिए कि जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना स्वर्गदूतों के द्वारा ली जाती है और परमेश्वर के वेदी की ओर पहुंचाई जाती है। And fourth verse says, and the smoke of the incense together with the prayers of saints rose up before God from the hand of the angel. और चौथा वचन कहता है उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। And the angel took the censer and filled with the fire from the altar and hurled it to the earth. तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। And there were peals of thunders and rumbling, flashes of lightnings and the earthquake. और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। A news came that they have noticed the fireball came from the heaven sky. और ऐसा समाचार आया कि आग का गोला आसमान से गिरा। Amen. आमीन। Hallelujah. That Hallelujah. means we are very much near to the 7 years tribulation. इसका मतलब है हम जो है 7 साल सताव के बहुत ही नजदीक है। Prayers of the saints are mixed with the fire and was put
mixed with the incense and offered to the Lord. और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं जो है वेदी पर जो सिंहासन के सामने थी चढ़ाई गई And it went to God. और वो परमेश्वर के पास Then गई। angel took the censer, filled it with the fire from the altar, and hurled it to the earth. तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दिया। Before 7 years tribulation begins, 7 साल का सत्ताव का समय शुरू होने के पहले this will happen. ये होगा। When we read Revelation 8, जब हम प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय पढ़ेंगे we can see this. हम ये देख सकते Before हैं the 7 trumpets were blown, 7 तुरैयां फूकने से पहले this will happen. ये होगा। Then, after that, first trumpet will begin. उसके बाद पहली तुरई फूकी Then जाएगी। famines, pestilence, and deaths, Hades will be on the land. और इसके बाद And अकाल, death बीमारियां, means mort. मृत्यु, नर्क चारों ओर पृथ्वी पर दिखाई देंगे। 10 kings and 10 kingdoms are coming to rule. 10 राजा और 10 राज्य पृथ्वी पर राज्य करने वाले हैं। We behold the beauty of God. और हम जो है परमेश्वर के सुंदरता को लेकर चलते हैं। In Revelation 16:18, यह प्रकाशित वाक्य 16-18। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। and 19th verse says, the great city was split into 3 parts. और इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। That will split into 3 parts, वो 3 टुकड़े हो and the जाएंगे cities of the nations collapsed. और जाति जाति के नगर गिर पड़ेंगे। And God remembered the Babylon the Great and gave her the cup of the wine of the fury of his wrath. और बड़े बेबीलोन का सिमरन परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। Revelation 4:5. प्रकाशित वाक्य 4-5। From the throne came a flashes of lightning, rumblings, pearls of thunders. Before the throne burned 7 torches. These are the torches. These are the 7 spirits of God. उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। Jesus Christ will not come down to the mid-air to take his church up while the Satan and his demons are still occupied in the third heaven, that mid-heaven. यीशु मसीह मध्य आकाश में तब तक नहीं आएगा जब तक मध्य आकाश में शैतान और उसके दूत हैं। Revelation 12:7-9. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9। We are learning from the book of Revelation 12. हम 12 अध्याय से सीख रहे हैं And that 7-9 we learned. और 7 से 9 हमने सीखा। Then a war broke out in the heaven. तब स्वर्ग में लड़ाई हुई। Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back, but the dragon was not strong enough, and no longer was any place found in heaven for him and his angels. मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। And the great dragon was ruled down, that ancient serpent called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was ruled to the earth and the angels with him. परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। So this woman, तो ये जो स्त्री थी, this woman is consisting of 4 groups. ये स्त्री के 4 ग्रुप है। And group 1 is a part of all groups. ग्रुप 1 जो है पहला ग्रुप वो सबका भाग है। And the church
the woman must fly up. कलिसिया यानी स्त्री वो जरूर उड़ना चाहिए. Church is taken up from the presence of Antichrist. कलिसिया जो है अंतक्रिस्त के सामने से उठा ली That जाएगी. is group 1. वो ग्रुप एक है. We have already learned that वो पहले से हमने सीखा है. the Antichrist is revealed before 30 days of the rapture. उठा लिए जाने के 30 दिन पहले अंतक्रिस्त दिखाई देगा. We can open 2 Thessalonica 2nd chapter and 3rd and 4th verse, we can see it. दूसरा तस्सलोनिकी दूसरा अध्याय तीसरा और चौथा वचन हम देख सकते हैं. Abomination of desolation is set up 1290 days. घृणित वस्तुएं स्थिर होगी 1290 दिनों के लिए. And that is in Daniel 12:11. वो दानियल 12 अध्याय 11 वचन में है. He will come and stand before the rapture. वो आएगा और उठा लिए जाने से पहले खड़ा होगा. We can see his time on the chart. हम चार्ट में उसका टाइम्स देख सकते हैं. 3.5 years plus 3.5 years, and middle of that is midpoint. 3.5 साल और 3.5 साल और उसका बीच का जो पॉइंट है उसे मध्य पॉइंट कहते हैं. 7 years is divided in 2 parts. 7 साल 2 भागों में बांटे गए हैं. 3.5 years plus 3.5 years. 3.5 साल और 3.5 साल. That 3.5 years means 1260 days. 3.5 साल मतलब 1260 दिन. And another 3.5 is 1260 days. और बाकी बचा हुआ 3.5 साल मतलब 1260 दिन. And according to Daniel 12:11, दानियल 12 अध्याय 11 वचन के अनुसार the abomination of desolation is set up 1290 days. घृणित वस्तुओं का स्थिर किया जाना 1290 दिनों के लिए होगा. So if we subtract 1260 from 1290, अगर 1290 में से 1260 काट देंगे we will get 30 days. तो 30 दिन मिलता So है. the Antichrist will appear before 30 days before the rapture. तो अंतक्रिस्त जो है उठा लिए जाने के 30 दिन पहले दिखाई देगा. Within this 30 days window before rapture, यानी कि 30 दिन पहले, Antichrist must appear in Jewish temple. और अंतक्रिस्त जो है वो यहूदियों के मंदिर में प्रकट होगा. And he will proclaim himself as God. और वो अपने आप को परमेश्वर कहेगा. But God will bear you up on his eagle wings to take you up shortly. पर परमेश्वर अपने उखाब के पंखों पर आपको उड़ा कर लेकर जाएगा. Woman, स्त्री, the church, कलिसिया flew into the uninhabited place. उस जगह पर उठा ली जाएगी जहां पर कोई भी अब तक नहीं रहा है. That is brand new place. उससे वो ब्रांड न्यू जगह होगी. It is not the wilderness. वो जो है वो रेगिस्तान नहीं होगा. But after Satan and his angels were cast down, पर शैतान और उसके दूत नीचे गिरा दिए जाने के बाद, as we can see in 2 Thessalonica 2nd chapter 3rd and 4th verse, जैसे हमने देखा दूसरा थस्सलोनिकी दूसरा अध्याय तीसरा और चौथा वचन or Revelation 12:7-9. 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य 7 से 9 तक. So after Satan and his angels were cast down on the earth, और शैतान और उसके दूत नीचे पृथ्वी पर जब गिराए जाएंगे उसके बाद no one has stepped into that mid heaven. कोई भी उस मध्य आकाश में प्रवेश नहीं करेगा. Jesus will not come into the mid heaven until the Satan and all that his demons are thrown down. मध्य आकाश में यीशु मसीह तब तक नहीं आएगा जब तक शैतान और उसके दूत नीचे पृथ्वी पर नहीं फेंके जाएंगे. And the whole mid heaven is cleansed. और उसके बाद पूरा मध्य आकाश शुद्ध किया जाएगा. That uninhabited place is cleansed, is called mid air. और वो जो जहाँ पर कोई भी अब तक नहीं रहा वो मध्य आकाश की जगह पूरी साफ की जाएगी, शुद्ध की जाएगी. That mid air is वो मध्य आकाश की जगह made जो है new वो नया बनाया जाएगा. for the greatest event ever is going to take place. बहुत बड़ी घटना जो होने वाली है जो अब तक कभी भी नहीं हुई है. For that event, that mid heaven is cleansed. उस समय के लिए उस घटना के लिए मध्य आकाश को शुद्ध किया जाएगा. Jesus Christ will not come into the mid air to take his church
up while the Satan is there and his demons are there. अपनी कलीसिया को उठा लेकर जाने के लिए तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा जब तक वहां पर शैतान और उसके दूत है तब तक। We have already learned from Revelation 12:7-9. हमने पहले से पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9 वचन तक। First, Satan and his demons must throw down from mid-air. मध्य आकाश से शैतान और उसके दूत जो है नीचे गिरा दिए जाएंगे। Then the mid-air is cleansed, तब मध्य आकाश शुद्ध किया जाएगा made ready to receive the church. और तैयार किया जाएगा कि कलीसिया को वो ग्रहण कर सके। Archangel Michael did war with Satan and cast him from the mid-air. माइकल जो वेदी का स्वर्गदूत है वो अजगर से लड़ेगा। को मध्य आकाश से नीचे फेंक देगा. The sky was rolled up like a scroll and vanished. और जो आसमान है वो रोल होगा और गायब हो जाएगा। We can find it in Revelation 6:14. जैसे प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय और 14 वचन में लिखा है। Yeah, mid-air is cleansed, मध्य आकाश शुद्ध किया made जाएगा, new. नया बनाया जाएगा It's ready for Jesus Christ to come to take up his people. और तैयार हो जाएगा कि यीशु मसीह आए और अपने लोगों को उठा ले। Jesus Christ, the Holy One, will step in that mid-air or mid-heaven. और मध्य आकाश में पवित्र प्रभु यीशु मसीह अपना कदम रखेगा To receive his bride. अपने दुल्हन को लेने के लिए। That mid-air is a new uninhabited mid-air. और वो मध्य आकाश की जगह वो जगह है जहाँ पर अब तक कोई भी नहीं रहा, Where we all will gather up. जहाँ पर हम सब इकट्ठा होंगे। We will make a nest in the high in the mid-air. मध्य आकाश में हम अपना आशियाना बनाएंगे, As Job says in Job 39:27-30. जैसे अय्यूब 39:27 से 30 तक लिखा है। On the rock Jesus Christ we will have our dwelling place. चट्टान जो है यीशु मसीह, उस पर हमारा निवास होगा। We, हम the elect, जो चुने हुए हैं now know our future. अब हम हमारे भविष्य को जानते हैं। We can see our future हम हमारे भविष्य को जानते from हैं afar. दूर से, We know that we are going to make a nest in that sky. और हम जानते हैं कि हम आसमान में अपना आशियाना We बनाएंगे। eat the body of Jesus and drink the blood of Jesus. हम यीशु मसीह के देह को खाते हैं और उसके लहू में पीते That हैं। is लहू what में से it's पीते spoken हैं। about eagles eating the flesh and the blood. और वो जो है उकाब के लिए कहा गया था कि वो लहू और मांस को खाते Where हैं। Jesus' body, यीशु मसीह where का the शरीर, Jesus is, जहाँ पर यीशु मसीह in the है, mid-air, मध्य आकाश में, there you are. वहाँ पर आप है। You are eagle. आप जो है उकाब You are है। going to take up the wings and fly to that place. आप उकाब के जैसा पंखों को पाएंगे और उड़कर जाएंगे। That same answer Jesus gave in Matthew 24:28. और वही उत्तर यीशु मसीह ने मत्ती 24 और 28 में दिया। For the question 2 in verse 3. जो दूसरा सवाल पूछा गया यीशु मसीह से तीसरे वचन में। Psalm 18:19. जब हम भजन संहिता 18-19 पढ़ते हैं, There the psalmist prophesied, भजन संहिता लिखने वाला भविष्यवाणी करता He है, brought me out into an open. वो मुझे बाहर लेकर आया। जहां पर खुला है. Open means a broad place. खुला मतलब बहुत ही चौड़ा स्थान। He rescued me because He delighted in me. उसने मुझे बचाया क्योंकि वो मुझे चाहता था। So God is going to take us in a broad place. परमेश्वर जो है हमें बहुत बड़े चौड़े स्थान में लेकर That जाएगा। broad place is mid-air. वो जो चौड़ा स्थान है वो मध्य आकाश है। Job 39:27. अय्यूब 39:27। Is it at your command that the eagles mount up and make his nest on high?
क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? On the rock he dwells and makes his home, on the rocky card and stronghold. वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। From there he spies out the prey, and his eyes behold it from afar off. वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता So है। God is going to give you a long distance sight. परमेश्वर आपको दूर से देखने की दृष्टि He देगा। has given us a future. उसने हमें भविष्य दिया From है। far we can see that future. दूर तक हम अपने भविष्य को देख सकते हैं। Verse 30. 30 वचन। His young ones suck up the blood, and where the slain are, there is he. उसके बच्चे भी लहू चूसते हैं और जहाँ घात किया हुआ है वहाँ पर वो है। Amen. आमीन। Glory to God. प्रभु की स्तुति Matthew हो। 24:28. मत्ती 24 उसका 28वां वचन। Wherever the slain is, there is eagles will gather. जहाँ पर घात किया हुआ है वहीं पर उकाब इकट्ठे होंगे। The woman is to be nourished in her place for 3.5 years. और जो स्त्री है वो 3.5 साल तक वहाँ पर संभाली जाएगी। Time, times, and half a time. समयों और आधे समय तक। And this language is spoken for the believers and the church. और ये जो भाषा है विश्वासु और कलीसिया के बारे में लिखी है। Time means 1 year. समय मतलब 1 साल। Times means 2 years. समयों मतलब 2 साल। Half a time means half year. आधा समय मतलब आधा And the साल। total of 3.5 years. और जोड़कर इसे कहते हैं 3.5 साल। The church will be in her place, that means mid-air, for after the rapture for 3.5 years. कलीसिया जो है मध्य आकाश में होगी 3.5 साल। जो बाकी बचे हुए वहां पर वो संभाली जाएगी। The church will be in her place, that means mid-air, after rapture. और उठा लिए जाने के बाद कलीसिया अपनी जगह पर यानी मध्य आकाश में होगी। The church will be nourished by God for 3.5 years. और कलीसिया को परमेश्वर 3.5 साल तक संभालेगा। These 3.5 years ये 3.5 साल is the second half of the 7 years tribulation. 7 साल जो सताव के हैं उसका दूसरा हिस्सा है। While the 3.5 years there is a great tribulation on the earth, और 3.5 साल जो है वो महाक्लेश है पृथ्वी पर। but you will rejoice with the Lord in the heaven. पर आप जो है प्रभु के साथ स्वर्ग में आनंद मनाएंगे। You can read it in Revelation 12:12 a part. आप प्रकाशित वाक्य 12:12 अ भाग में पढ़ सकते हैं। Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मग्न हो। So we are going to be in that heaven for 3.5 years. हम जो है उस मध्य आकाश में यानी स्वर्ग में होंगे 3.5 साल And तक। we will rejoice. और हम आनंद होंगे। But you can see आनंदित what होंगे। is happening to the earth. पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर क्या होता B होगा। part. बाबा But woe to the earth and sea and the great fury, the devil has come down to you, knowing he has only a short time. हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। Satan knows he is in very short time. शैतान जानता है कि उसको थोड़ा ही समय है। But the man Antichrist doesn't know. पर जो मनुष्य अंतक्रिस्त है वो नहीं जानता। The 10 kings doesn't know. 10 राजा नहीं जानते। The people in the 10 kingdoms doesn't know. और 10 राज्यों में जो लोग हैं वो नहीं जानते। The one world government doesn't know. एक जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो नहीं जानती। The one world government which is going to reign doesn't know that they have a short time. वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को मालूम नहीं कि उनको राज्य करने के लिए थोड़ा समय। They are thinking they are going to reign forever and ever on this earth. वो सोचते हैं कि इस पृथ्वी पर वो हमेशा हमेशा राज्य करेंगे। We can open Revelation 12:5.
प्रकाशित वाक्य 12:5 She gave birth to a son, a male child, वह बेटा जनी who will rule all the nations with iron scepter. और जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। And her child was caught up to God and to his throne. और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया Here गया। we can see that she gave birth to a male child. और यहाँ पर उसने पुत्र जनी। That is a new stage of the church to rule as a male child. और ये जो है कलीसिया का नया स्टेज है, पुत्र का स्टेज, जैसे कि जॉन में लिखा है कि we will be like his son. कि हम उसके पुत्र के जैसे होंगे। Male means leader पुत्र मतलब अगुवा, and ruler. राज्य करने वाला। Child means a pure and a बच्चा मतलब clean to enter पवित्र, into heaven. शुद्ध, जो स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। Amen. All glory to the Lord Jesus Christ. सारी महिमा प्रभु यीशु। The rapture took place as God planned it. और जैसे परमेश्वर ने योजना बनाई उस तरह से उठा लिया जाना होगा। That is harpazo. उसे कहते In हैं Greek. हर्पाज़ो, ग्रीक You can में। find in 2 Thessalonica 2nd chapter 1st verse. वो दूसरा थेसलोनिकी दूसरा अध्याय पहला वचन में है। Male child. पुत्र, That you are the male child in your new stage. आप अपने नए स्तर पर पुत्र के नाई है। God sees you as a male child when he raptures you. परमेश्वर आपको देखता है पुत्र के नाई जब वो आपको उठा ले जाएगा। As when Jesus Christ first came to this world, जैसे क्रिस्त यीशु इस दुनिया में पहले आया as a male child, पुत्र के नाई। male means leader. पुत्र मतलब अगुवा। You become like a child to enter into the kingdom of heaven. आप पुत्र के नाई आप राज्य में प्रवेश करेंगे। You are now in a new tabernacle, और आप जो है अब नए तंबू में होंगे, a new glorious body. नए महिमावंत शरीर में। Your salvation is now complete. और आपका उद्धार अब पूरा हुआ। When you open Psalm 91:16, जब आप भजन संहिता 91 उसका 16 वचन पढ़ेंगे, you can see that church is got raptured and is going to return with Lord Jesus Christ to reign. कि कलीसिया जो है उसका उठा लिया जाना होगा और वह अब प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करने आएंगे। Your patience endurance will produce this glory that many desires but would not see. और आपका धीरज जो है वो उसे देखेगा जो बहुत सारे चाहते हैं पर वो देख नहीं पाए। You will no longer feel the pain or agony. और आप फिर से वो पीड़ा और उस दर्द को नहीं सहेंगे। God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। God will be with you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा। We will be with God. हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। Should we pray? क्यों ना हम प्रार्थना Father करें। God, we thank you. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। We love you. तुझसे प्रेम करते We हैं। worship you. तेरी आराधना करते We हैं। thank you for your word is and amen. हम धन्यवाद करते हैं तेरा वचन हाँ और आमीन है। We thank you for your helping us to learn. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें मदद करता है कि हम सीखें। You're speaking with us. तू हमसे बातें करता है। You are our God. तू हमारा परमेश्वर है। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं। We thank you for your word, धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए which is true. जो सच्चा है। Father, हे पिता we bless you. हम तुझे धन्य कहते You हैं। said it in Psalm 91:16. तूने कहा भजन संहिता 91:16 में With long life I will satisfy him.
बड़ी आयु से मैं उसे तृप्त करूंगा and show him my salvation. और मेरे उद्धार को दिखाऊंगा। We thank you, Father, हम धन्यवाद करते पिताजी, for you are going to satisfy us with a long life. क्योंकि तू हमें बड़ी आयु से आशीष करेगा। Your church, तेरी कलीसिया your को, people तेरे लोगों को are going to be in the rapture, जो उठा लिए जाएंगे, and we are going to see a salvation, और हम हमारे उद्धार को देखेंगे। new body, नया शरीर, glorious body, महिमा का a शरीर, new tabernacle. नया तंबू। We bless you, हम तुझे धन्य कहते for हैं, all your promises are A and amen. क्योंकि तेरे सारे अभिवचन हाँ और आमीन है। We thank you, Master. हम धन्यवाद करते हैं मालिक, We thank you, Father God. धन्यवाद करते हैं पिता We परमेश्वर, bless you. तुझे धन्य कहते हैं। Thank you for every word which spoken by Jesus. हर शब्द जो यीशु मसीह ने कहा उसके लिए धन्यवाद करते As he हैं। said in John 16:21, जैसे उसने यूहन्ना 16:21 में a कहा, woman has a pain in a childbirth स्त्री को बच्चा जन्मने के लिए जैसे पीड़ा होती है, because her time has come. क्योंकि उसका समय आ पहुंचा है। But when she brings forth her child, पर जब वो बच्चा जन्म लेती है, she forgets her anguish because of the joy that a child has been born into the world. वो अपने दर्द और पीड़ा को भूल जाती है, क्योंकि वो बच्चा उसने जना है और वो दुनिया में आया है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते We हैं। are going to forget all our pain and anguish. हम हमारे सारे पीड़ा और दर्द को भूल In जाएंगे। the same way, उसी तरह से as we are going to achieve our rapture, जैसे हम उठा लिए जाएंगे, we are going to have a new tabernacle, हमें नया तंबू मिलेगा, a glorious body. महिमावंत शरीर। We thank you. हम धन्यवाद करते We हैं, praise you. तेरी स्तुति करते हैं, We thank you for the great plans which you have for us. और जो बड़ी योजनाएं हमारे लिए तेरे पास है, हम धन्यवाद करते हैं। Let the whole church be blessed पूरी कलीसिया आशीषित हो जाए, as they are preparing themselves for the rapture, जैसे वो अपने आप को उठा लिए जाने के लिए बना रहे हैं, as they are going to face any situation for you, Lord. और जैसे वो तेरे लिए कोई भी परिस्थिति को सामना करने के लिए तैयार हुए Because हैं। of your word, तेरे वचन के we कारण live, Lord. हम जीवित हैं। Because of your word, तेरे शब्द के कारण we can face tomorrow. हम कल को फेस कर सकते We हैं। thank you. हम धन्यवाद करते We हैं, bless you तुझे हम धन्य कहते for the हैं whole church. पूरी कलीसिया के लिए, In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमीन। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, I think you can ask anything. If आप you want कुछ to भी ask or पूछ share. सकते हैं अगर आपको पूछना है या कहना है। How can the same group of person or same body of person be the bride as well as newborn male child? सेम ग्रुप कैसा मेल फीमेल चाइल्ड ब्राइड रहेगा और कैसा मेल रहेगा ना? मेल चाइल्ड मतलब द वन हु इज गोइंग टू कम विथ जीसस क्राइस्ट एंड रेन विथ हिम. इट्स अ फिगरेटिव वर्ड. पुत्र यानी वो जो यीशु मसीह के साथ आएगा और राज्य करेगा, बिकॉज इट इज प्रोफेसाइड दैट वी आर द किंग्स एंड ही इज द किंग ऑफ क्योंकि किंग. भविष्यवाणी की गई है कि हम राजा है और वो राजाओं का राजा है। सो आवर किंग विल कम तो हमारा राजा आएगा हियर ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर फॉर 1000 years. So after 7 years we are called male. Now, after 3.5 years, for God is going to that woman is going to give a birth for the male child. When 3.5 साल Birth बाद is rapture. जन्म जो है उठा लिया जाना है। Birth is rapture for the male child. Male child who is going to come with Jesus. पुत्र को जन्म देना, जो पुत्र यीशु मसीह के साथ आएगा, He will come after the 3.5 years great tribulation. वो जो है 1000 साल राज्य करने आएगा मिलेनियम में। 3.5 साल महाक्लेश, बड़े महाक्लेश के बाद Mahaklesh, he will be up उस महाक्लेश में वो ऊपर होगा and God will protect her. और
protect her. हर वहां पर हर चाइल्ड, एक्चुअली इट्स ऑल स्पीकिंग अबाउट रैप्चर. यहाँ चर्च पे- मतलब हर, चर्च मतलब ही. यहाँ पर पुत्र या स्त्री या दुल्हन वो कलीसिया के बारे में कहा गया है. So bride. ब्राइड इज जीसस, जिसके लिए मरा, दैट्स व्हाई उसको ब्राइड बोला है. लेकिन वही ब्राइड जो है मेल चाइल्ड जैसा रेन करने आएगा. पुत्र जैसा वो राज्य करेगा. इट्स अ फिगरेटिव ये वर्ड्स. कलीसिया ब्राइड ही है, मतलब जिसको दुल्हन कहा गया है, पुत्र भी कहा जीसस गया इज है. नॉट गोइंग टू मैरी लाइक एज द वर्ल्ड मैरीज. यीशु मसीह विवाह नहीं करेगा जैसे दुनिया विवाह करती दैट है. मैरिज इज डिफरेंट. वो विवाह अलग है. दैट ब्राइड इज डिफरेंट. वो जो दुल्हन है वो अलग है. दैट ब्राइड इज नॉट वन पर्सन. वो दुल्हन एक व्यक्ति नहीं है. द होल ऑफ द चर्च. दुल्हन मतलब वो सब In church, that 4 groups are there. जो 4 ग्रुप है कलीसिया So के, whole group is called a female woman, और वो सब ग्रुप को मिलाकर स्त्री कहा गया है. and that woman is at the pregnant and she is about to give the child. और वो गर्भवती है और वो बच्चा जन्ने को है. That means about to give. Church is about to go into the rapture stage. इसका मतलब कलीसिया जो है वो बच्चा जनने के स्टेज में है. उसका मतलब है वो उठा लिए जाने के स्टेज में है. the church, the woman gave a male child birth. और स्त्री ने पुत्र को जना. That means she got raptured इसका मतलब है वो उठा ली गई. with male child. Means male means leader, वहां पर पुत्र मतलब अगवा, ruler. राज्य करने वाला. Jesus will come. यीशु मसीह That is आएगा different. And he is going to take his bride. और वो अपने दुल्हन को लेकर So जाएगा. bride is speaking about the church. और दुल्हन जो है वो कलीसिया है. The one and the same thing. वो दोनों एक ही बात है. Church is called many a times woman, कलीसिया को बहुतों बार स्त्री कहा गया many a है, times bride, बहुतों बार दुल्हन कहा गया है. and the raptured church is called male child. और जो उठा लिया गई जो कलीसिया है उसे पुत्र कहते हैं. It's not a literal woman giving birth to a ये male ऐसा child. नहीं है कि स्त्री पुत्र को जनेगी. नहीं, जो दुल्हन उठा ली जाएगी, जो कलीसिया है वो दुल्हन है, और जो लोग उठा लिए जाएंगे वो पुत्र कहलाएंगे. समझे आप? And we are going to come with Jesus और हम यीशु मसीह के साथ आएंगे for 1000 years. 1000 साल के We will लिए. reign with हम him. यीशु के साथ राज्य करेंगे. And that word King of Kings and Lord of Lords और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु will be accomplished in that 1000 years. वो 1000 साल में पूरा होगा. You are going to reign with him और आप उसके साथ राज्य as a करेंगे, king, राजा बनकर, as a Lord. प्रभु बनकर. You are going to rule over others. आप दूसरों पर राज्य You करेंगे. are going to tell them, hey, worship the King of Kings. आप कहेंगे राजाओं के राजा की He is आराधना only कर. worthy of honor, praise and glory. वही आदर महिमा के योग्य है.